Today, I have the privilege to talk to a person who has truly influenced an entire generation of doctors and medical students across India. अपना टाइम आएगा नहीं लेकिन अपन खुद लाएंगे. Dr. Sumer Sethi, the founder of DAMS, Delhi Academy of Medical Sciences. Dr. Sumer sir does not need any introduction. He is a radiologist, a renowned medical educator, a successful entrepreneur. But what makes today's podcast special is that we are not going to discuss anything about radiology. मुझे तो एक चीज हमेशा याद करनी है, जब हम डॉक्टर बनते हैं ना, द रूटीन डे ऑफ अवर लाइफ इज वर्स्ट डे ऑफ समवन एल्स. आप समझ पा रहे हो? हमारी जो जिंदगी का साधारण दिन होता है, जो सामने जो मरीज आ रहे होते हैं उनका तो वर्स्ट डे होता है, तभी हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं. Despite the host and the guest being two radiologists, we are not gonna discuss single word about radiology. It is all about the behind the scene roles, the mindset requires to become a successful clinician, a good doctor, and perhaps a future entrepreneur. शुरुआत में जब कोई भी चीज आप शुरू करते हो ना, एक ब्लर्ड पिक्चर होती है और एक जुनून होता है कि यार ये मुझे करने में अच्छा लगता है. तो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड. We discussed about many things eloquently. One is the journey of DAMS, the difficulties of making a successful organization, the mindset it requires for a young medical student to become a good doctor and then an entrepreneur. हमारे जो नए बच्चे एमबीबीएस में आ रहे हैं ना, उनको शायद एक पहले दिन ना एक बढ़िया सी ओरिएंटेशन करने की जरूरत है दो बातों के बारे में. पहली कि ना, ये हमेशा पढ़ना पड़ेगा जिंदगी में. ये मत सोचो कि कुछ खत्म होके जिंदगी सफल हो जाएगी. वो जो यूजी से आते हैं ना, नीट यूजी के अंदर 11वीं 12वीं में उनके जो फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर होते हैं, वो होता है एक बार नीट निकल जाए जिंदगी सफल हो जाएगी. ऐसा नहीं हो पाएगा. Taking the responsibility on yourself, the role of AI in healthcare, because AI is not a hypothesis anymore, it is the reality. You have to imbibe it, you have to inculcate it, and you have to use in your daily works. More than the achievements, the destination mindset, we talked about the journey, the process of coming into something, enjoying it, and making it meaningful. So it's going to be a roadmap for the young medical student, how to utilize their opportunity, how to utilize their timing to become a better doctor and an entrepreneur later on. And for a young doctor who has just come into practice, what are the soft skills required and the hard skill also to become a better doctor. Hello everyone, I am Dr. Raman Sahu. I am a consultant radiologist from West Bengal, currently working in Bengaluru. I hope this conversation gives you a meaningful insight to carry forward your medical journey. So ज़्यादा देर नहीं करेंगे अब. Let's begin the conversation with Dr. Sumer sir. So first of all, thank you sir for giving your time. It is really, for me, it is honor to share the podcast with you sir, because you have been my inspiration since my PG preparation days. I saw you in Kolkata. I attended your class. I mean, it was something else. That aura was different, sir. नहीं, आई थिंक इट्स माई ऑनर कि जब मैं अपने ही बच्चों से दोबारा बात करने को मिलता है, वो मुझे हमेशा अच्छा लगता है. क्योंकि जब मैं पहले आपसे मिला हूँगा क्लास में, ऑडिटोरियम के अंदर वहाँ कोलकाता में, तो आप उस समय घबराए हुए होंगे कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा. और आज आप अच्छा कर रहे हैं, तो दोबारा बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है. Perfect, sir. Okay, sir. So you and a podcast, it should, I feel like it should start from DAMS. तो sir शुरू करेंगे कि when you started DAMS, did you ever imagine that you would influence an entire generation, or maybe not entire generation, multiple generation of doctors? शुरू में ऐसा सब कुछ प्लान था या? एक्चुअली जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो लगता है कि सब कुछ प्लानिंग के साथ हुआ होगा, लेकिन वो जो प्लान होता है वो हमारा नहीं होता, हम सबसे जो बड़ा है उसका होता है. मैंने तो जब शुरू में, तो मेरा एक ही विजन था कि पढ़ाने में मजा आता है, और दूसरा जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि इम्पैक्टफुल पढ़ाने में मजा आता है. इम्पैक्ट में मतलब कि यार हमने पढ़ाया और स्टूडेंट को उसके बाद एक आउटकम मिल पाया. मतलब मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैंने कुछ बताया लेकिन उसके बाद हमें मेजरेबल आउटकम ना मिले तो मजा नहीं आता था. तो डैम्स में मुझे जो सबसे अच्छा लगा कि हम बच्चों को एक तो दिशा दिखा पाए,
जब हमने शुरू किया था उस समय पे कोई भी इस तरह की एकेडमी नहीं थी, तो सब लोग बोलते थे कि कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई में और कंपटीशन के अंदर अलग है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं रहा। तो दैट दैट वाज द ब्रॉड आउट माइंडसेट जिसको लेके हमने शुरू किया। कभी नहीं सोचा था कि इतने बच्चे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था इतने शहरों में लोगों को मिलेंगे, बट बाय गॉड्स ग्रेस ये सब हो पाया। तो मैं तो सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि शुरुआत में ना पूरी पिक्चर समझ नहीं आती कभी भी। शुरुआत में जब कोई भी चीज आप शुरू करते हो ना, एक ब्लर्ड पिक्चर होती है और एक जुनून होता है कि यार ये मुझे करने में अच्छा लगता है। तो दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड। करेक्ट सर, करेक्ट सर। और डैम्स बनाने में सर द मोस्ट डिफिकल्ट फेज कब था? एक्चुअली शुरू वाला फेज तो आसान था, क्योंकि हमें ज्यादा कुछ हम चाहते ही नहीं थे एक्चुअली। तो हमें पता ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो मजे में ही रहा। ज्यादा मुश्किल फेज जो रहा हमारे लिए कोविड वाले समय पे रहा, क्योंकि कोविड के समय पे हम पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स के अंदर डैम्स अवेलेबल था उस समय पे। और एक बार लॉकडाउन आने के कारण और ये सब आने के कारण काफी उस समय पे एक उथल पुथल हुई। और लेकिन मैंने अपने आप को बोला कि नहीं यार, अब हमें डिजिटली अडेप्ट होना है और हमें मोबाइल ऐप बनाना है। तो वो पूरा लॉकडाउन का पीरियड हमने मोबाइल ऐप बनाने के अंदर, लाइव क्लासेस बनाने के अंदर पूरा लगाया। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू टुडे, डैम्स इज द ओनली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन दिस सेगमेंट वेयर वी आर रनिंग फुल कंप्लीट लाइव क्लासेस। सब रिकॉर्डेड डाल रहे हैं, हम लाइव क्लास रन कर रहे हैं। वो कोविड के समय किया। मतलब मुश्किल भी थी, मौका भी था, क्योंकि इतने खाली कभी हुए नहीं थे। तो सोचा कि चलो अब ऑनलाइन बनाते हैं। कोविड के टाइम पे जब सर ये ऑफलाइन वाला क्लास जब वो तो बंद हो गया था, तो फाइनेंशियली भी तो डेफिनेटली एक बिजनेस वाइज एक मतलब ऑफलाइन में बिजनेस बोल रहा हूँ, हाँ डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ होगा सर। हाँ, वो बहुत सारी जगह पे ना, जैसा ऐसा होता है कि ऑफलाइन के ऊपर ना एक पूरा तामझाम होता है। आपका अपना क्लासरूम है, रेंट्स जा रहे हैं, मेंटेनेंस जा रही है, लोगों के सैलरी जा रही है। और मतलब एज अ पर्सन जो डैम्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक परिवार की तरह हम चलाते हैं। आज हम 300 के लगभग स्टाफ मेंबर्स हमारे साथ हैं, और उसके अलावा फैकल्टी मेंबर्स भी 100 के लगभग हो जाते हैं, सारी पैन बोर्ड मिला के। हमने कोविड के समय किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी। तो ये एक था कि एक दिन की भी नहीं रोकी। तो उस कारण से क्या हुआ कि कॉस्ट तो वही जा रही थी, कि स्टाफ की सैलरीज जा रही थी, सब कुछ जा रहा था, किराए जा रहे थे। एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कितना समय वो अनसर्टेनिटी चलेगी। तो डेफिनेटली फाइनेंशियली तो वो लॉकडाउन एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसा कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस के लिए कभी प्लान नहीं कर सकता कि ऐसा होगा कि आपने तो सब नेटवर्क बना लिया, अच्छा भी काम किया, रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सडनली वो कह रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो वॉज दैट मतलब थोड़ा एक, मुझे लगता है कि अब मैं लुक बैक करता हूँ तो हाँ लगता है कि हाँ ठीक है। उस समय तो लगा था हाँ यार ये क्या, कैसे मैनेज करें। सर वो कोविड का जो एरिया था, डू यू फील कि ये एक काइंड ऑफ एक वाटरशेड एरिया था बिटवीन ऑफलाइन स्टडी एंड ऑनलाइन स्टडी का? अब मुझे ऐसा लगता है अब हम 2026 में आ गए, अब तो हम अगले वाटरशेड में आ गए हैं। या अब मुझे एआई लगता है में कि अब ऑनलाइन जो प्योर रिकॉर्डेड लेक्चर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल फटीग आउट हो चुके हैं, और एक बहुत ही हार्ड सेलिंग तरीके से लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपने कॉलेजेस के अंदर बच्चों को बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हें पुश कर रही हैं, लेकिन बच्चे फटीग्ड आउट है। मैं किसी भी बच्चे से मिलता हूँ बोलता है कि सर मैंने ये खरीदा, बोला अच्छा पढ़ा क्या, उसको पता ही नहीं। तो अब एक नया एक ईरा आ रहा है जहां अब उसका सही मिक्सचर जो है ना, जहां ऑफलाइन ऑनलाइन का जो हाइब्रिड है, जहां दोनों चीजें की अपना अपना रोल है। सेल्फ लर्निंग का अपना रोल है, टीचर का अपना रोल है, और मैं तो ये बोलूंगा कि टीचर के साथ बात करके, और स्टूडेंट टीचर रिश्ते का एक अपना अलग रोल है। आपका मेरा रिश्ता भी जो बन पाया था वो कहीं ना कहीं हम जब क्लास में पहली बार मिले थे तो होता। पता नहीं आपने वो खाली मुझे वीडियो में देखा होता तो कितना रिश्ता बनता। तो ये एक ना, अब जो कोविड से पहले था प्योर ऑफलाइन, कोविड में आगे लोग बिल्कुल मतलब एकदम जैसे होता है ना डबल डाउन हो गए कि अब सिर्फ ऑनलाइन होगा। अब 2026 में जाके उसका सही जो मिक्सचर है ना वो सामने आ रहा है कि नाउ वी नीड बोथ बट इन अ राइट मिक्सचर। अभी सर ऑफलाइन क्लासेस का डिमांड कैसा है, मतलब कंपेयर टू बिफोर सर? अभी जैसे क्या चल रहा है, मतलब मैं बताता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट्स के अंदर एक देखता हूँ तो अब जो बच्चा सीरियस पढ़ाई कर रहा है, जैसे थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, इंटर्न ऑनवर्ड्स, उसके बाद जा रहा है, या
एग्जाम दे रहा है एक बार नीट पीजी के बाद, वो ऑफलाइन की तरफ ज्यादा जा रहा है। जैसे खासतौर पे ऑफलाइन के अंदर जो लिमिटेशन सबसे बड़ा अभी अवेलेबिलिटी है। ऑफलाइन सेंटर्स जो है ना, जैसे डैम्स के ऑफलाइन सेंटर अभी 28-30 शहरों में हम अवेलेबल हैं, तो उसके अलावा वाले के पास तो कोई और रास्ता ही नहीं है। तो इट वुड नॉट बी फेयर टू से कि एक शहर जहां ऑफलाइन कोचिंग ही नहीं है, वहां डिमांड है कि नहीं पता ही नहीं, क्योंकि वहां तो है ही नहीं ना। तो जिन शहरों में ऑफलाइन है, वहां पे जो छोटे बच्चे हैं ना, जो अभी जिनका एग्जाम दूर है, वो तो फिर सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सेल्फ लर्निंग करते हैं या ऑफलाइन में आएंगे कि बाद में ऑफलाइन करेंगे। लेकिन जितना वो एग्जाम के नजदीक है, उतना वो ऑफलाइन में ज्यादा आ रहा है, जो इस समय पे जो सिचुएशन है। ठीक है सर। सर यू आर ए रेडियोलॉजिस्ट, फिर एडुकेटर, फिर एंटरप्रेन्योर एंड व्हाट नॉट, तो इनमें कौन सा रोल यू मतलब हु इज सुमेर सेठी, अगर कोई अगर पूछता है तो आप क्या आंसर दोगे सर? मैंने ना अपनी जिंदगी में ना हर वो चीज मैं फॉलो करता जाता हूँ जो मुझे काम नहीं लगती। मतलब इट शुड नॉट फील लाइक वर्क टू मी, और जो करते समय मुझे समय नहीं पता चले। तो एमबीबीएस की इंटर्नशिप के अंदर जब मैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट देखा तो मुझे अच्छा लगा। पीजी करते समय, उसके बाद मैं रेडियोलॉजी में काम करते समय, मुझे हमेशा कभी टाइम पता नहीं चला, और पढ़ाते समय तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। तो अब अगर मैं सब कुछ सोचता हूँ ना, तो आई फाइंड माई सेल्फ मोस्ट अलाइव ऑन द स्टेज। ऑल्दो मतलब मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, लेकिन स्टेज पे जो बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, जो सामने लाइव ऑडियंस बैठा है उसको पढ़ाने में मजा आता है ना, उसका अलग ही मजा है। और उसके बाद ना जब बच्चे आके बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, तो लगता है कि यार अपन कुछ इम्पैक्टफुल जिंदगी में काम कर रहे हैं। तो मतलब इफ आई लुक बैक, और मैं अब आंख बंद करके अपनी खुद की जिंदगी में सोचता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी मेरे लिए होती है स्टेज पे। जैसे कोलकाता में ही जैसे एक वो बड़ा सा ऑडिटोरियम में मैंने वहाँ क्लास लिया, मैं नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नजरुल मंच होगा सर, ओके हाँ, मैं नजरुल मंच भी। तो ऐसा जैसे एक मैं वहाँ लेक्चर ले रहा था, तो अब मेरा क्या है कि मुझे बैठना नहीं है, मुझे तो पूरा एनर्जी रहनी है। तो एक कोने से दूसरे कोने तक जा रहे आ रहे, आप लेक्चर ले रहे हो पूरा दिन। क्लास के एंड के बाद ना आपको लगता है यार थक गए बहुत, लेकिन एक अजीब सी खुशी मिलती है कि मजा आया यार, ये स्टूडेंट्स ने, यार कई बार कोलकाता में रहता है, स्टूडेंट ने अपने तालियां बजा दी, बीच में कोई डाउट भी पूछने आ गए, स्टेज के ऊपर बच्चे आ गए, एक अलग ही मजा है। तो मुझे लगता है कि एज अ एजुकेटर, मतलब प्रॉब्ली दिस इज व्हाट आई वुड रेजोनेट मोस्ट एज अ पर्सन वुड बी टीचिंग। और सर डिफरेंट शहरों पे, डिफरेंट सिटीज पे आप पढ़ाते हो, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है कि साउथ में कोई बैंगलोर ले लीजिए आप, चेन्नई ले लीजिए, क्या डिफरेंस क्या होता है? मतलब स्टूडेंट का माइंडसेट पे कुछ डिफरेंस होता है सर? देखो, कुछ कुछ जो एज अ एजुकेटर, या जब अपन स्टेज पे होते हैं ना, तो कुछ चीजें हम ऐसी देख पाते हैं जो आप लोग नहीं देख पाते, क्योंकि आप तो सामने बैठे रहेंगे, हम सामने से देख रहे हैं। तो जैसे अपन कोलकाता में पढ़ा रहे हैं, कोलकाता का बच्चा को जो डाउट होगा ना, वो जरूर होगा, और उसको डाउट डिस्कस जरूर करना है, बहुत इमोशनली। तो बड़ा मजा आता है, उसको पूरा कॉन्सेप्ट जानना है, अलग ही मजा आता है। या फिर हम जब इधर जाते हैं, कई बार केरला गए या चेन्नई गए, तो शुरू शुरू में वो बच्चे कई बार जैसे हम कुछ जोक डाला, कोई जोक ऐसा होता है जो टीचर का दिल्ली में तो चल जाता है, और वो साउथ में वो जोक बोला, कोई हंसा नहीं, अब वो अडेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना। लेकिन अल्टीमेटली ना, मैं देखा जो डॉक्टर बच्चे हैं ना हमारे, सब पढ़ना चाहते हैं, सब सीखना चाहते हैं। आपको ना सेंस मेक करनी पड़ेगी, आपको पहले 1 घंटे में ना उनको समझाना पड़ेगा कि आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, आप काम की बात कर रहे हो। उसके बाद वो सुनते हैं, चाहे कोई भी शहर हो। वो थोड़ा बहुत रीजनल एक मतलब ह्यूमर, बात करने के तरीके में थोड़ा फर्क ऊपर नीचे होता है कि कोई कैसे को रेजोनेट करता है कैसे। लेकिन अगर आप मेडिकल साइंस में सेंस बना रहे हो ना, 1 घंटे के अंदर अंदर वो सभी बच्चे बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर बच्चे ना वो हैं जो पढ़ना चाहते हैं। ये अनलाइक एनी अदर प्रोफेशन है। सर एक एडुकेटर, कोई नया एडुकेटर अगर इफ समवन स्टार्टिंग हिज और हर करियर एज एन एडुकेटर, तो किस टॉपिक पे फोकस सबसे ज्यादा देना चाहिए? मतलब टॉपिक एजुकेटर, इन द सेंस व्हिच एस्पेक्ट आई एम टॉकिंग, माने नॉलेज हो गया, या कम्युनिकेशन हो गया, डिलीवरी ऑफ स्पीच हो गया, या सम XYZ सर? अच्छा, अब मैं इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, जिसको ना लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो नॉलेज है। मतलब अगर आपने को पता ही नहीं है, आप अच्छे स्पीकर हो सकते हो, अच्छे प्रेजेंटर हो सकते हो, और आपने स्टेज को कमांड भी कर सकते हो, लेकिन अपने को पता नहीं है ना, तो आप एक्सपोज हो जाओगे। मतलब मेरा जो डैम्स के अंदर मैंने जब मैंने टीचर्स अपने शुरू में हायर करने शुरू किए, अपने साथ लोग जोड़ने शुरू किए, आज भी जब करता हूँ, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि उसको सब्जेक्ट मैटर में उसका कंट्रोल कितना है। अब कई बार ऐसे टीचर आते हैं मेरे पास जो कहते हैं कि यार मैं तो सभी कुछ पढ़ा दूंगा। मैं पूछता सभी कुछ, मैंने कहते डॉक्टर सुमेर आप बताओ, आप जो सब्जेक्ट बोलोगे वो पढ़ा लूंगा। तो मतलब ये नहीं जमेगी बात भाई।
आप मैं थोड़ी बताऊंगा कि आपको क्या आना, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट तो अपना स्ट्रेंथ का आप बताओगे ना। सो ग्रेजुअली व्हाट हैज हैपेंड इज, मैंने क्या देखा है कि अगर अपने को नॉलेज नहीं है, लेकिन आज जो नया जनरेशन का बच्चे हैं ये बोलने में ना बहुत सॉलिड है, मतलब इनको स्टेज पे खड़ा कर दो ये बहुत बढ़िया बोल लेंगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो शुरू में तो चल जाएगा, लेकिन फिर स्टूडेंट्स का किसी का रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब आप जैसे, मतलब दो चीजें हैं, जैसे मैं इतने साल में देखता हूँ टीचर्स के जब फीडबैक में पढ़ता हूँ, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो इमीडिएट क्लास के बाद आते हैं, ये हो सकता है कि आपके पर्सनैलिटी ड्रिवन हो या आपके बात करने के तरीके के ड्रिवन हो। एक फीडबैक बच्चे ना एग्जाम के रिजल्ट के बाद भी देते हैं कि साहब ये टीचर ने जो पढ़ाया है मेरे काम भी आया कि नहीं आया। तो मुझे क्या लगता है कि दोनों का अपना अपना वैल्यू है, लेकिन स्पीकिंग स्किल्स कैन बी लर्न, आइडियाज कैन बी लर्न, बट नॉलेज तो अपने को रखनी पड़ेगी ना। और यही बात ना मैं मेडिकल साइंस प्रैक्टिस में भी कहता हूँ। एक मेरे पास एक जगह, अभी मैं एक इवेंट में बोल रहा था, उन्होंने बोला कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए डॉक्टर को क्या क्या स्किल सीखनी चाहिए, मतलब उसे क्लिनिक मैनेजमेंट में क्या क्या सीखना चाहिए। मैंने कहा, पहले तो अपना सब्जेक्ट सीखना चाहिए ना। कैन नॉट अंडर एस्टिमेटेड ना, जो मैं जो काम कर रहा हूँ मैं उसके अंदर बेस्ट होना चाहिए। कि यार मैं जैसे, अगर मुझे रेडियोलॉजी नहीं आती होती, मैं कितना भी अच्छा बोलता, मैं कितना भी अच्छा टीचर होता, आप मेरे से उतना रेजोनेट नहीं करते। लेकिन अब आपको पता है कि यार ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये काम की बात भी है, और पेपर में भी काम आती है, एग्जाम में भी काम आती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी काम आती है। तो दैट इज द फुल पैकेज दैट यू नीड। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यही होता है सर, मतलब पेशेंट आना आया। बहुत जरूरी है, आपको अपना काम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट सर, करेक्ट सर। अच्छा सर, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी, डैम्स या जो भी आपका वेंचर जो सब है आपका, डेफिनेटली आपका विजन बहुत बड़ा है। इट हैपेंड बाय प्लानिंग और ऑटोमेटिकली इट हैपेंड? मैंने बताया ना कि उस समय पे ना, जब मैंने ये शुरुआत के अंदर मेरा आइडिया था कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। दूसरा, मेरा अपने समय पे मेरा ऑल इंडिया जो पीजी एग्जाम होता था उसमें रैंक 4 आया था मेरा। और और मैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पढ़ा हूँ। और सब लोग बोलते थे कि हमारा कॉलेज अच्छा कॉलेज मानते थे, और आज भी अच्छा मानते हैं। और लेकिन मैंने कहा यार, ये मैं इतना अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, फिर भी जो मेरे आसपास के जो और लोग हैं उनको आइडिया समझ नहीं आ रहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, और मैं उसको आसानी से क्रैक कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं कुछ चीजें जानता हूं जो ये लोग मिस कर रहे हैं। और वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई कि मुझे, मतलब एक एलिमेंट मेरी लाइफ का, क्लिनिकल लाइफ के अलावा टीचिंग लाइफ का मुझे रखना है। और तो वहां से शुरुआत हुई डैम्स की। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और टीचर्स जुड़ते गए, और शहर में कई जगह, कहीं फ्रेंचाइज पार्टनर जुड़े, कहीं हमने खुद सेंटर खोला, फिर मोबाइल ऐप आ गया। तो मुझे लगता है कि मैं इतना, मतलब एरोगेंस नहीं कह सकता कि मैंने सब प्लान किया, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अब मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो लगता है कि हाँ, किसी प्लान के हिसाब से हुआ है। लेकिन आई केप्ट मूविंग विद माई गट फीलिंग कि यार ये ठीक लग रहा है, करना चाहिए। द ओनली थिंग वाज आई सेड यस मोर ऑफन देन आई सेड नो। मतलब जितनी भी जगह मुझे अपॉर्चुनिटी लगी, मैंने ज्यादातर जगह पे यस करने की कोशिश की, नो कम बोला। तो आई टुक माई चांसेस। और मैं वही चाहूंगा, अब जो भी लोग आगे एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चाहते हैं, आप अगर सोचोगे कि एक परफेक्ट प्लान जिस दिन आपके दिमाग में बन जाएगा उस दिन आप चालू करोगे, तो शायद कभी भी नहीं करोगे। आगे गट फीलिंग पे बढ़ना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू से यस टू अपॉर्चुनिटीज एंड सी हाउ दे मूव फॉरवर्ड। सर, रिस्क टेकिंग इज ए बिग डिटरमाइनिंग फैक्टर टू कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, डेफिनेटली। रिस्क टेकिंग, मतलब रेकलेस जो रिस्क टेकिंग होता है और कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग होता है, ये मतलब कोई, सर मैं क्यों क्यों ये सब चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट बीन टॉट इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। कोई मेडिकल स्टूडेंट या कोई यंग डॉक्टर जो एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है, तो उसको मतलब इधर उधर से मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आई वांट योर ओपिनियन, कि कोई रिस्क लेना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है जिंदगी में, तो वो रिस्क लेने का जो प्रोसीजर है, व्हाट इज दैट प्रोसीजर? मतलब ये थोड़ा सा ना, मतलब मेरा इसमें अलग टेक है। मेरा क्या तरीका, मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ। ये सर, मैं ना क्या करता हूँ, मैं एक साधारण घर से आता हूँ, और मैं अपने आप को मैं सेल्फ मेड कहना चाहूंगा। तो मेरा क्या तरीका है कि जब हम साधारण घर से आते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने के ना कुशन नहीं होते। कुशन मतलब जैसे कोई एक व्यापारिक परिवार से अगर कोई आ रहा है, या किसी के पास अच्छे फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली है, उसके पास ना वो गिर भी गया तो गद्दा लगा हुआ है, वो बच जाएगा। अपन नहीं बच सकते थे।
तो मेरा जो तरीका क्या रहा ना, मैंने कहा कि यार क्योंकि मैं रिस्क लेना भी चाहता हूँ और मैं हारना भी नहीं चाहता, तो मैंने हमेशा अपने ऊपर डबल हार्डवर्क पे किया। मैंने काफी समय तक, लगभग 10-12 साल तक मैं एज अ रेडियोलॉजिस्ट, मतलब एक हॉस्पिटल में, दिल्ली की लीडिंग हॉस्पिटल में काम भी किया। 5 बजे खत्म करके 5 बजे से रात 11-12 बजे तक बैठ के कंपनी भी चलाई, छोड़ा नहीं मैंने। तो थोड़ा बहुत ना क्या, रिस्क टेकिंग को मैंने ऐसे ऑफसेट किया कि ये एक तनख्वाह आ रही है, ये मैं बना रहा हूँ, नहीं बना तो खत्म नहीं हुआ। तो एंड देन व्हेन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, तब मैंने इसको फुल प्लंज लिया। थोड़ा आज के समय में ऐसा जरूरी नहीं हर कोई ऐसा करे। आज आज बहुत सारे तरीके, आज बहुत सारे इस तरह के इंक्यूबेटर्स भी हैं जहां आप अपना बिजनेस स्टार्टअप आइडिया देके आप इन्वेस्टर्स के साथ बात करके एंजल इन्वेस्टर भी मिल जाते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो बीइंग एंटरप्रेन्योर वर्ड भी किसी को नहीं पता था। तो उस समय तो लोग कहते थे बिजनेस करना मतलब गंदी बात है, और डॉक्टर बिजनेस कैसे सोच सकता है, और भी गंदी बात है। तो अभी वैसा नहीं है, तो अभी तो पहले के मुकाबले आसान हो गया। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है जो आईटी के लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चे हमारे डॉक्टर नहीं समझ पाते, उसका नाम है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मतलब आपने एक बड़ा सपना देखा, अगर वो बड़े सपने में सब कुछ पहले दिन शुरू कर दोगे तो बहुत ज्यादा पैसा आप बर्न कर दोगे और वो रिस्क आप बढ़ा कर लोगे। आपने पहले ये सोचना है उन सब में से सबसे छोटा क्या हो सकता है जो आप कर सकते हो। जैसे हमने हमारी जो डैम्स की शुरू की क्लासेस थी आईएमए हॉल में रन कर दी, तो रिस्क कम हो गया। आईएमए हॉल को, उसको पैसे, हॉल के पैसे देने थे, बस डे के क्लास के, चल गया तो बढ़िया। नहीं तो क्या आप इस तरह की चीजें सोच सकते हैं कि क्या मैं ऐसा सबसे छोटा क्या करूं जो मेरी स्टार्ट हो सके और मेरे को आइडिया लग सके, या फिर जिसको हम रिसर्च के अंदर बोलते हैं पायलट स्टडी। जरूरी नहीं है ना आप हर सारी जगह पे एक साथ करोगे, आप पायलट भी तो करोगे ना। ये रिस्क मिनिमाइज करने के दो तरीके, एक कि आपको ऑल और नन जो होता है ना, कि कल से मैं नौकरी छोड़ रहा हूं और अपना बिजनेस शुरू करूं, जरूरी नहीं है ना। थोड़ा सा एक मतलब आप ओवरलैप पीरियड रख सकते हो ना। करेक्ट सर। अपने समय को थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा। और दूसरा यू कैन डू इज फाइंड आउट व्हाट, मैंने जो बड़ा मेरा सपना है उसमें से सबसे छोटा क्या है जो मैं अभी करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कभी कभी ना मेरे एक मीट में बात कर रहा था, एक बच्चा बोला कि सर मुझे बड़ा हॉस्पिटल खोलना, मेरा पैसे नहीं है। मैंने कहा छोटा कर ले। तो वो कहता नहीं छोटा नहीं करना। मैंने कहा छोटे करने में क्या शर्म है। आप अगर एक छोटा क्लिनिक करके शुरू करते, थोड़ा थोड़ा बढ़ता, फुटफॉल आता, पैसे आते, कुछ उसके साथ लैब जोड़ते, फिर कुछ और जोड़ते, कुछ और जोड़ते, आप 8-7-8 साल में आप बड़े हॉस्पिटल में पहुंच जाते। सो स्टार्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन, मतलब आप अगर सोचते ही रह गए तो बात नहीं बनेगी। और बहुत बड़ा रिस्क पहले दिन ही लेना चाहिए। कभी कभी आइडिया बाद में चेंज हो जाता है, कभी कभी जो आपने सोचा होता है वो और जो आप बाद में करते हो उसमें फर्क होता है। तो लेट द आइडिया इवॉल्व, पायलट स्टडी, और जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट या एक एमवीपी शुरू में बनाएं और उसके ऊपर चले। परफेक्ट सर। मतलब इससे जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग जो आया कि जो क्वेश्चन जो है जिसके पास नहीं है, यू हैव टू मेक दैट क्वेश्चन बेसिकली बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं या तो मैं घर में बैठा रहूंगी, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है अब, या फिर मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा ना, अपने Yes. कंफर्ट जोन को स्ट्रेच करूंगा। तो मैं तो आज भी करता हूँ। जैसे आज भी, अभी मैं मेरे ऑफिस में हूँ और हम सैटरडे के दिन में हैं, संडे में भी कई बार मैं रहूंगा, क्योंकि मैं ना अपना माइंडसेट तो वही रहेगा ना जहां से मैं आया हूँ। मुझे पता है कि यार अपन खुद से बनाना है, खुद से बना रहे हैं, तो वो जिम्मेवारी मुझे लेनी पड़ेगी ना, कोई मेरे लिए नहीं करके देगा। और एक बार इसी तरह मैं क्लास में बोल रहा था कि सब बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा, आएगा नहीं अपन लाएगा। तो बच्चों ने तालियां बजा दी। तो तब से वो लाइन में, बच्चे जब तक मैं क्लास में बोलता नहीं हूँ मानते नहीं है। तो लाना पड़ेगा ना, अगर नहीं है, मतलब इफ आई एम नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, आई एम नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, तो क्या मैं और नहीं मांग सकता, क्या मैं नहीं लड़ाई लड़ सकता क्या? तो मैं समय से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपने टाइम से लड़ोगे ना। ठीक सर, कोई फर्स्ट ईयर का कोई स्टूडेंट जो अभी जर्नी शुरू कर रहा है, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का मैं बोल रहा हूँ, जो कि नया नया एकदम मेडिकल स्कूल में आया, तो उनके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए टू बिकम ए, नॉट टू जस्ट कोर आई मीन मार्क्स और नॉट टू क्रैक एनी एग्जाम, टू बिकम ए बेटर डॉक्टर इन फ्यूचर एंड ओवरऑल जिंदगी में जो आगे जाएगा, क्या रोड मैप होना चाहिए मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट का सर? अच्छा, इस बारे में ना मेरा थोड़ा सा एक मानना है, आई एम वेरी हैप्पी कि आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू अबाउट इट। हमारे जो नए बच्चे एमबीबीएस में आ रहे हैं ना, उनको शायद एक पहले दिन ना एक बढ़िया सी ओरिएंटेशन करने की जरूरत है दो बातों के बारे में। पहली कि ना, ये हमेशा पढ़ना पड़ेगा जिंदगी में। ये मत सोचो कि कुछ खत्म होके जिंदगी सफल हो जाएगी। वो जो यूजी से आते हैं ना, नीट यूजी के अंदर 11वीं 12वीं में उनके जो फिजिक्स केमिस्ट्री टीचर होते हैं, वो होता है एक बार नीट निकल जाए जिंदगी सफल हो जाएगी।
ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो फर्स्ट ईयर में आगे सोचते हैं एक बार फर्स्ट प्रॉफ निकल जाए जिंदगी सफल हो जाएगी, होती नहीं है, अगला प्रॉफ आ जाता है। और हर बीते हुए प्रॉफ में, हर बीते हुए साल से किताबें और नॉलेज बढ़ती जाती है। आप एक बार इमेजिन करना, 12th क्लास के मुकाबले फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, Yes. फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के मुकाबले सेकंड ईयर में और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ईयर के मुकाबले फाइनल एमबीबीएस में और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फाइनल एमबीबीएस के मुकाबले एमडी करते समय बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, एमडी के मुकाबले डीएम, और मतलब एज आई गो अप द लेडर द नॉलेज बैंक दैट आई हैव टू फिगर आउट विल इंक्रीज। तो ये जो डेस्टिनेशन माइंडसेट है ना, उससे तो पहले निकलना पड़ेगा कि कहीं पहुंचना नहीं है, ये तो जिंदगी भर चलना है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ना, इट इज राइट रीजंस दैट वी नीड टू इनकलकेट इन अवर किड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात ना, मैं बहुत सारे बच्चों को बताता हूँ, कई बार मेरे दोस्तों के बच्चे जो क्लास 12th में होते हैं, कई बार वो बोलते हैं कि डॉक्टर बने तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो एक चीज हमेशा याद करनी है, जब हम डॉक्टर बनते हैं ना, द रूटीन डे ऑफ अवर लाइफ इज वर्स्ट डे ऑफ समवन एल्स। Yeah. आप समझ पा रहे हो, हमारी जो जिंदगी का साधारण दिन होता है, जो सामने जो मरीज आ रहे होते हैं उनका तो वर्स्ट डे होता है, तभी हॉस्पिटल में आ रहे होते हैं। और उस समय यदि आप ना ये सोच रहे हो ना कि मैं कहीं पहुंच गया हूं या मैं अराइव कर गया हूं, तो आप वो एम्पैथी नहीं ला पाओगे टेबल पे। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, यू हैव टू बी अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, नंबर 2 यू हैव टू बी empathetic enough to understand that you are dealing with people in pain and agony। वो तो जरूरी है जानना। और तीसरी बात जो अब आपकी उसमें आता हूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में होते तो आप जब ये सब चीजें आपके दिमाग में है ना, तो आप एनाटॉमी ठीक तरह से पढ़ते। मतलब सपोज आपको शोल्डर की एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, तो आपने अपने आप से पूछना है, व्हाई इज दिस क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, व्हाई वुड इट मेक मी अ बेटर डॉक्टर बाय अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी ऑफ रोटेटर कफ। ये मेरे लिए क्लिनिकली रेलेवेंट क्यों है। जैसे आप ये पूछना शुरू करो, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम भी ज्यादा बेहतर होंगे, आपके कंपटीशन भी ज्यादा निकलेंगे, आप डॉक्टर भी ज्यादा बेटर बनोगे। बिकॉज वो फर्स्ट ईयर को आप ना वैसे नहीं पढ़ सकते जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे। स्कूल में पढ़ रहे थे युगांडा की कैपिटल बताओ, रशिया की करेंसी बताओ, वैसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज के अंदर जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है और फाइनल ईयर की पढ़ाई है, सब इंटरकनेक्टेड है। आपको ब्रिज आपको दिमाग में बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ब्रेन की एनाटॉमी, ये क्लिनिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जैसे ये शुरू करोगे ना, मजा आना शुरू हो जाएगा। करेक्ट सर। ये जो शोल्डर वाला जो अब बात बोले आप, फॉर एग्जांपल फॉर मी, मैंने एनाटॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ा। वो बड़ा वाला ग्रेस एनाटॉमी जो था उससे मैं पढ़ा। ओनली एनाटॉमी आई फाइंड वेरी, आई मीन बहुत इंटरेस्ट मिला मुझे एनाटॉमी में। तो दैट हेल्प मी लेटर इन रेडियोलॉजी। बेसिकली मैंने फिजियोलॉजी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, सो मैं मेडिसिन का अगर डॉक्टर बन जाता तो उतना अच्छा नहीं होता। मतलब ऑल्दो एक थोड़ा सा नॉन फैशनेबल बात है, लेकिन मैंने तो डिसेक्शन भी किया है। मेरे टेबल पे कॉलेज के अंदर सब लोग इधर उधर हो जाते थे, हमने तो पूरा डिसेक्शन किया। मतलब कि यार ये तो डीएच तो प्रिविलेज है। जी सर। सब कहते थे कोई और कर ले। मैं बोला अच्छी बात है, तो प्रिविलेज छोड़ रहे हैं ये लोग। यस सर। जैसे ग्रेज एनाटॉमी हो गई, या हमारे समय पे कनिंघम यस सर। सेक्टर होते, वी ट्राइड अवर बेस्ट कि सब कुछ सीखें। लेकिन अगर ना वो चीज को मजाक में हटा देते हैं, या हम मेडिकल साइंस को डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। कई बार आप देखोगे लोग बोलते हैं कि यार डॉक्टर बन के भी क्या फायदा होगा, ये वो बाद की बातें हैं। आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट तो आपको ये सोचना पड़ेगा ना, मैं ये आर्ट ये साइंस कैसे सीखूं, और वो आपको थोड़ा सा पैशन लाना पड़ेगा टेबल के ऊपर ना। अगर आप ये सोचोगे ना कि सिर्फ एक साधारण जॉब की तरह आप मेडिकल साइंस को नहीं तोल सकते, ये उससे ज्यादा बड़ी है। मतलब और नॉलेज बेस भी ज्यादा बड़ा है, तो इट रिक्वायर्स सम पैशन टू बी ब्रॉट टू द टेबल इन फर्स्ट ईयर। इट इज कमिंग इनटू द डिफरेंस बिटवीन ए जॉब एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बेसिकली किसी का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मैं आई डोंट वांट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन, बट यू आर टीचिंग इन डैम्स एंड समबडी एल्स टेकिंग क्लास इन डैम्स, आई फील लाइक देयर विल बी डिफरेंस। हाँ देखो, इसमें यूजुअली क्या होता है कि कोई भी अगर इंसान होता है, अगर वो उसको ओनरशिप लेता है उस बात की, जरूरी नहीं आप उसके मालिक ही हो। Yes, आप हॉस्पिटल में भी जब आप काम कर रहे होते हैं, आप देखोगे दो प्रकार के डॉक्टर होंगे। एक मरीज के ऊपर ओनरशिप लेगा कि तेरे आउटकम का मैं जिम्मेवार हूं, जिसको जिम्मेवारी लेना कहते हैं। वैसे एम्प्लॉय भी होते हैं, वैसे ही आप एंटरप्रेन्योर भी होते हैं। और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर होने के बाद भी जिम्मेवारी नहीं लेते। ओके। आप तो ये एक माइंडसेट है, एक पर्सनालिटी टाइप है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे कई मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल मीटिंग होती है, मैं ये लाइन कई बार बोलता हूँ मैं कि अगर सब ठीक हो गया ना तो तुम सबका क्रेडिट है, गलत हो गया तो मेरी गलती मान लेना, अब काम करो। तो जिम्मेवारी लेना जो है ना, ये एक पर्सनैलिटी है ये। और मुझे लगता है फिजिशियन को भी ये लेनी चाहिए,
एजुकेटर्स को भी लेनी चाहिए और एंटरप्रेन्योर को तो लेनी ही पड़ेगी बाय वर्च्यू ऑफ, आप तो बिजनेस के मालिक हैं, आपको तो लेनी पड़ेगी। अगर आप जिम्मेवारी नहीं ले रहे ना अपनी चीज की, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। और जब आपको मजा नहीं आ रहा होगा तो सामने वाले को दिखना शुरू हो जाएगा, मरीज को दिखने लग जाएगा कि ये डॉक्टर तो खाली टाइम काट रहा है, या स्टूडेंट को लगेगा कि ये टीचर तो डल हो रहा है। मतलब वो माइंडसेट की बात है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियल ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। राइट। कमिंग बैक टू द एमबीबीएस टॉपिक सर, ईयर वाइज अगर एलोकेट करना है, फॉर एग्जांपल यू जो आपने बताया कि ये जो डेस्टिनेशन वाला माइंडसेट छोड़ के एंजॉय द जर्नी वाला माइंडसेट ऑन करना है, एंड रियली इट इज मतलब एक समथिंग आई फील लाइक कोई मुझे ये बताता उस टाइम पे तो फर्स्ट ईयर पे अगर कोई पर्टिकुलर चीज पे फोकस करना है, कट फॉरवर्ड टू सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर, किन किन चीजों पे मुझे फोकस करना चाहिए टू बिकम ए बेटर डॉक्टर इन फ्यूचर और बेटर क्लिनिशियन और व्हाटएवर? अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेकेंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमने जैसे बात की एनाटॉमी की, तो फिजियोलॉजी की, लेकिन जो सेकेंड ईयर है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर के अंदर क्या होता है, ज्यादातर बच्चे ना इंडिया के अंदर जब तक हमारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इन्हें ना एक नीट के एग्जाम में, यूजी के एग्जाम में एक लॉटरी की टिकट की तरह कहानी बताई गई थी कि एक लॉटरी लगेगी, उसके बाद मजा ही मजा आएगा। और फर्स्ट ईयर के अंदर आके ना वो पहले 2-3 महीने तो पार्टी वार्टी करते रहते हैं, जब तक उन्हें समझ आता है पढ़ना कैसे, सेकेंड ईयर आ जाता है। अब जब सेकेंड ईयर में बच्चा आ गया ना, तो उस समय पे ना उसको ये सोचना पड़ेगा सेकेंड ईयर के अंदर कि हाउ टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन व्हाट आई नो टुडे एंड रीच टू what will be needed from me as a doctor। उसके अंदर ना सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैथोलॉजी की जो किताब है ना, और खासतौर पर रॉबिन्स पैथोलॉजी मेरी हमेशा से फेवरेट किताब रही है मेरे खुद के समय पे भी। जैसे हम ना ये सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल ऑर्गन है, इसमें जब बीमारी होगी तो उसमें क्या होगा, अगर ना वो कोई सोचना शुरू करेगा ना, और उसके बाद ना आपको उसकी मैनेजमेंट भी समझ आनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे जब आप फाइनल ईयर में आओगे आप उसकी ट्रीटमेंट और उसकी इमेजिंग भी समझ पाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल है लेकिन इस तरह की काफी एग्जांपल है। जैसे आपने मेरी क्लास में अटेंड किया तो मैं मेरी क्लास से ही देता हूँ कि एक आदमी को ब्रेन में एक पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गई, जस्ट वी नॉट गोइंग गेटिंग इनटू डिटेल्स। अब अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो एक उसका जो प्रोटीन होगा वो इम्यून रिस्पॉन्स इंसाइट करेगा और उसके आसपास इन्फ्लामेशन होगी। So suppose I have an infection in my brain, it should be surrounded by inflammation all around। ये सिंपल आइडिया हमने पैथोलॉजी से उठाया, माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी से उठाया। अब हम स्कूल में गए, किसी भी शेप का सबसे इफेक्टिव शेप कौन सा है, सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, कौन सा है? सबसे इफेक्टिव शेप होता है सर्कल। So that means the infective organism should be surrounded by a ring of inflammation। अब हम रॉबिन्स में गए, पैथोलॉजी, जहां पे में इन्फ्लामेशन होगी वहां ब्लड फ्लो बढ़ेगी, और अगर ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट होगा। इफ आई गिव, अब मैं फाइनल ईयर में आ जाता हूं, अगर मैं पेशेंट को इंट्रावीनस कॉन्ट्रास्ट दूंगा, जैसे एमआरआई करते समय गैडोलिनियम देते हैं, तो जो हिस्से में ब्लड फ्लो बढ़ा होगा और ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्टेड होगा इन्फ्लेमेशन के कारण, वो एनहांस करेगा। So when I look at it on a MRI image, it will look like a ring lesion. And when I study in pathology, I need to know the basics of cardinal hallmarks of inflammation। और उसी प्रकार से जब वहां से आगे गया, वो पैरासाइट था तो पैरासाइट की दवाई कौन सी देनी होगी, वहां एल्बेंडाजोल का क्या रोल है, वहां पे प्राजिक्विंटल का क्या रोल है, ये सब बातें ना एक कंटिन्यूम के अंदर है। मैं इस कंटिन्यूम को ऐसे समझता हूं कि कोई भी बीमारी है तो क्यों हो रही है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसको डायग्नोस कैसे करोगे, उस डायग्नोसिस के अंदर रेडियोलॉजिस्ट का भी काम है, पैथोलॉजिस्ट का भी काम है, माइक्रो का भी काम है, लैब वैल्यू का भी काम है। फिर जब डायग्नोसिस बन गया तो मैनेज कैसे करोगे। कोई भी बीमारी मैनेज करने के लिए सबसे ज्यादा मरीज क्या चाहता है, मरीज चाहता है मेडिकल मैनेजमेंट कर दो, दवाई दे दो मुझे। तो एग्जाम भी आपसे पूछेगा ड्रग ऑफ चॉइस, दवाई बताओ ना। अगर लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर हो तो आपको पता होना चाहिए किस पॉइंट पे मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाएगी और सर्जिकल में जाना पड़ेगा। व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर डूइंग अ सर्जरी इन दिस पेशेंट। ईडीएच में कब सर्जरी करते हैं, एचडीएच में कब करते हैं, सब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और सब आपका मरीज भी आपसे पूछेगा। फिर कब ना मेडिकल ना सर्जिकल, कब पैलिएटिव करना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी बीमारी जिसमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, टच मी नॉट, पता होना चाहिए ना ये। और फिर क्या आपकी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आपकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। इस कंटिन्यूम को अगर आप सोचते हो ना, आप हर एग्जाम, हर मरीज हमेशा प्रैक्टिस के अंदर अच्छा करोगे। पूरे चेन ऑफ एक थॉट्स है, पूरा चेन ऑफ थॉट सबको इनकलकेट करना पड़ेगा। मतलब क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो एक है ना। जो गलती क्या हो रही है कि हम, आप सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, लेकिन गलती क्या हो रही है कि बॉडी तो एक ही है ना।
48 केस। बीमार तो एक आदमी हुआ, उसमें कहाँ लिखा था कि वो पैथोलॉजी का बीमार हुआ है कि सर्जरी का बीमार हुआ है कि मेडिसिन का बीमार हुआ है। तो वो जो कंटिन्यूम थॉट है जिसको हम इंटीग्रेटेड लर्निंग भी कहते हैं, वो धीरे धीरे बच्चों को और सीखने की कोशिश करनी, उसका तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, ask why this is clinically relevant. When you are in final year and internship, look back and see ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कब बताया था। मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जब फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे थे, उन्होंने बताया एक के अयोटिक डेवलपमेंट के समय पे कभी कभी एबरेंट राइट सबक्लेवियन बन के इसोफेगस के पीछे से चली जाती है। अब सर्जरी क्लास में आए कॉजेज ऑफ डिस्फेजिया, उन्होंने बताया डिस्फेजिया लुसोरिया। अब सर्जरी में आके यू नीड टू गो बैक एंड सी एम्ब्रोलॉजिकली ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ये हुआ है। सो फर्स्ट सेकेंड ईयर विल लुक फॉरवर्ड आस्किंग व्हाई, फोर्थ ईयर एंड इंटर्नशिप विल लुक बैकवर्ड ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। इसमें मजा आएगा। और जो भी एग्जाम परफॉर्मेंस है ना, मेरा इतने साल में एक ही लर्निंग है, उन्हीं बच्चों का ज्यादा अच्छा आता है, टॉप रैंक्स आता है, जो कंटिन्यूम में सीमलेसली सब्जेक्ट्स के बॉर्डर के बिना सोच पा रहे होते हैं। इंटीग्रेटेड थिंकिंग। कभी कभी क्या होता है कि स्पेशलिस्ट के पास कोई पेशेंट आता है, जो भी कंप्लेन लेके आएगा दैट टनल विजन होता है, फॉर एग्जांपल यूरोलॉजिस्ट वही सब यूरोलॉजी में डाल देता है, मतलब क्या। इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये जरूरी बताना। अब ये ना बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। सपोज आपने एमएस ऑफ्थेल्मोलॉजी किया, ऑफ्था में आपने एमएस किया, तो आपकी जो ईयर की नॉलेज है, आपकी जो फार्मा की नॉलेज है, या आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, आपकी एब्डोमेन की जो नॉलेज है, वो तो वही है ना जो एमबीबीएस में आई थी। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू टेक एमबीबीएस सीरियसली। मतलब आई मे स्पेशलाइज इन वन सब्जेक्ट, बट रेस्ट ऑफ द 18 सब्जेक्ट्स, द ओनली नॉलेज आई विल, द मैक्सिमम नॉलेज आई विल हैव विल बी व्हेन आई एम अपेयरिंग फॉर माय नीट पीजी एग्जाम। जब आप नीट पीजी दे रहे होगे, उस समय पे आपको जो ईएनटी पता होगी, उसके बाद तो ईएनटी आप देख ही नहीं रहे, आप तो आफ्ता में चले गए। और मरीज तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो सिर्फ आंख का हो, मरीज तो मल्टी सिस्टम मैनिफेस्टेशन होती है। आज तो हम जानते हैं ना, किसी को एंटीरियर यूवेइटिस होता है तो हो सकता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। सो एवरी ऑर्गन सिस्टम इज इंटरकनेक्टेड, और वहां पे पढ़ाई को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे तो लगता है कि सब स्टूडेंट्स को धीरे धीरे ये समझना जरूरी है कि जो भी हम पढ़ेंगे सब आपस में कनेक्ट होगा। और ये भी जानना जरूरी है कि जब भी हम डॉक्टर बन रहे हैं, वी आर डीलिंग विद पीपल इन डिस्ट्रेस। वो लोग हमारे पास हमेशा पेन में ही आएंगे, परेशानी आएंगे। वी हैव टू इनकलकेट दीज टू क्वालिटीज। ठीक सर, परफेक्ट एकदम। अच्छा, एमबीबीएस के टाइम पे ये क्लिनिकल वाला पढ़ाई वाला बात हो गया। पढ़ाई छोड़ के और क्या क्या चीज में सर फोकस देना चाहिए अगेन टू बिकम सक्सेसफुल क्लिनिशियन फर्दर? अभी के समय में ना, अगर मैं देखता हूं तो अभी कोई भी बच्चा अगर अभी मैं अगर एमबीबीएस में होता तो मैं पढ़ाई तो करता वो तो मैंने बताया, Yes. कोर एक्सपर्टीज तो करनी करनी। यस। लेकिन उसके अलावा जो दुनिया में ट्रेंड कर रहा है ना टेक्नोलॉजी के साइड पे, वो मुझे इनकलकेट अपनी जिंदगी में करना है। अगर आप आज मेडिकल स्टूडेंट हो और आपके फोन में सारे एआई के जो बड़े बड़े नाम आप सुनते हो, चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, और उनमें से कई सबके पेड सब्सक्रिप्शन आपने अभी तक नहीं लिए हैं, तो आप पीछे रह रहे हो। उनसे तो रोज बात करनी है आपने, जब तक कि आप समझ ना जाएं कि वो कैसे बात करते हैं। क्योंकि आप नहीं करोगे तो मरीज तो करेगा ही करेगा। आप अगर आज ये एआई टूल्स नहीं इस्तेमाल करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं इनकलकेट करोगे, तो मरीज करेंगे। आने वाले समय में तो यही होगा ना, मतलब बहुत के मरीज तो पहले ही पढ़ के आएगा ना कि मुझे ये सिम्टम है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आप बताओ। सो यू हैव टू इनकलकेट एआई इनटू योर लर्निंग। आपको उसका हैबिचुअल बनना है, जैसा आपने आदत इंस्टाग्राम की डाली हुई है ना, एआई की डालनी है। दूसरी है विजिबिलिटी। ये और भी इंपॉर्टेंट बात है कि आज के समय में ना जो बच्चे हैं, ये इनको विजिबिलिटी, एज अ डॉक्टर वो चाहेगा कि उसका नाम हो। पुराने समय में नाम होता था कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की तो आपके एरिया के लोग आपको जान जाते थे। आज वो एरिया बड़ा हो गया सोशल मीडिया के कारण। तो यू हैव टू हैव दी हैबिट कि मैं इंस्टाग्राम पे भी जाऊंगा, मैं लिंक्डइन में भी जाऊंगा, मैं हर जगह। और जरूरी नहीं है वहां जाके आप कोई आप वायरल होने की कोशिश मत करो। ये अगेन मैं कहना चाहता हूँ, एज अ डॉक्टर आपको वायरल होने की जरूरत नहीं है। आपको उल्टा पुल्टा डांस करके, कोई डांस स्टेप वगैरह दिखा के ऐसे जरूरत नहीं है। आपने अपनी नॉलेज शेयर करनी है। यू हैव टू प्लेस पोजीशन योरसेल्फ एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन वट एवर फील्ड यू आर इन। आप डर्मेटोलॉजी में हो तो डर्मा की बात कीजिए, फार्मा में है तो फार्मा की बात कीजिए। और पैन प्लेटफॉर्म करिए। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे बात करने में खतरा क्या है, कभी कभी वो प्लेटफॉर्म, जैसे आपने टिकटॉक पे बात करते रह गए, आप टिकटॉक ही बैन हो गया, फिर आप कहां से जाओगे? सो यू हैव टू टॉक ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम योर सब्जेक्ट्स पर्सपेक्टिव। तो मुझे लगता है अपना सोशल मीडिया स्किल्स और एआई स्किल्स तो मस्ट है। पब्लिक स्पीकिंग है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप बात कर पाते हो तो नथिंग लाइक इट। और इन सब के अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि
फाइनेंशियल लिटरेसी भी होनी चाहिए, यस और पता होना चाहिए कि पैसे को जो आप कमा रहे हो कैसे यूज करना है, और बहुत सारी बातें और हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉड मुझे लगता है ये तो नहीं मिस कर सकते आज आप। सर। इसी बहाने पे सर एक छोटा सा एआई का बात कर लेंगे सर। यू ब्रॉट दैट एआई टॉपिक। सो एआई विल कम, वो तो जमाना चला गया, इट इज हियर, इट इज हियर एंड कोई हाइपोथेसिस नहीं है, एआई इज द रियलिटी एंड पेशेंट्स आर यूजिंग सर। अभी बैंगलोर पे तो ऐसे होता है कि हर पेशेंट जो आता है प्रॉपर नॉलेज लेके आता है कि दिस नाउ यू आंसर इट्स लाइक दिस। सो क्या क्या एआई टूल एक स्टूडेंट को, अभी पहले स्टूडेंट में जाते हैं, स्टूडेंट को क्या क्या एआई टूल यूज करना चाहिए और किस अप्रोच में यूज करना चाहिए? बिकॉज मोर देन द नेम ऑफ द टूल, आई फील लाइक द अप्रोच वी आर यूजिंग दैट मैटर्स, आई थिंक। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट व्हाट वी यूज एज एजुकेटर्स इज, मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ कि पहले क्या होता था, जैसे हमने लेक्चर लिया, जैसे आपके समय पे डैम्स का एक लेक्चर हुआ, आपने ऑडिटोरियम में या क्लासरूम में बैठ के अटेंड किया। अभी क्या होता है कि बच्चे ने डैम्स के ऐप के ऊपर लेक्चर अटेंड किया, जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके नीचे एक बटन आ जाता है, कॉर्टेक्स एआई, हमारा एक टूल है उसका नाम है कॉर्टेक्स एआई, उसको ऑटो समराइज कर देता है। सो एआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू समराइज एनीथिंग। आप भी फिर एक और बड़ा अच्छी चीज है जो मैं करता हूँ, मेरे को कोई चीज समझ नहीं होती है तो मैं अपना कोई भी एआई टूल के साथ बात करके बोलता हूँ, एक्सप्लेन टू मी एज इफ आई एम अ नोविस, आई एम अ टॉडलर, मुझे कुछ भी नहीं पता भाई, मुझे समझाइए ये क्या चीज है। तो इट इज वेरी गुड लर्निंग विच वी हैव एट अवर हैंड। तो ऑटो समराइज बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, डैम्स के अंदर एक हमारा एक टूल है उसका नाम है शीफू। शीफू क्या करता है, लेक्चर के एंड में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर क्वेश्चन बना देता है, तो इट्स अ पोस्ट क्लास टेस्ट। ये सब चीजें ना पहले टीचर खुद करते थे कि क्लास हुआ, क्लास के बाद के लिए एक टेस्ट बनाना है, अभी वो कॉर्टेक्स समराइज कर देता है, शीफू उसका एक टेस्ट पेपर बना देता है कि ये टीचर ने लिया, अब ये टेस्ट करके अपने आप को चेक कर लो। फिर तो कम से कम ना आपको, जैसे सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन टॉपिक पढ़ा, अब आप चाहते हो कि मेरा टेस्ट लो, तो आप किसी भी एआई टूल को ये कह सकते हो कि मेरे लिए इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनाओ, मेरे लिए इसको बढ़ा के दिखाओ। तो ये तो मतलब बेयर मिनिमम है जो किसी भी टॉपिक के अंदर अपने आप को इवेलुएट करना या नॉलेज गेन करना। एक और चीज जो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं जिसका वैल्यू है, उसका वैल्यू है कि ना इस बीमारी में लेटेस्ट ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है, क्या क्या ट्रायल में चल रहा है, क्या ये सब चीजें मुझे एक जगह इकट्ठी करके दी जा सकती हैं। जो ना, अब सपोज करो आप, अभी तो अपन बात कर रहे हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, लेकिन आप थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो रेयर बीमारी के लोग भी आपके पास आएंगे। जो रेयर इलनेस होती है या क्रॉनिक इलनेस है, वो लोग तो और भी ज्यादा पढ़ के आएंगे। मतलब ये जरूरी है समझना, जैसे किसी को एक्यूट बीमारी हुई, एक्यूट, तो वो तो अभी उसको उतना टाइम नहीं मिला कि वो पढ़ के आएगा आपके पास, लेकिन क्रॉनिक बीमारी वाला तो पक्का पढ़ के आएगा ना एज अ डॉक्टर। तो क्या मैं भी एज अ डॉक्टर उसके साथ में एक मतलब कोलैबोरेटिव एफर्ट, मेरे को क्या लगता है कि बहुत सारे लोग इसको बात कर रहे हैं आजकल, क्या हेल्थ केयर पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए कि हॉस्पिटल ड्रिवन होनी चाहिए या डॉक्टर ड्रिवन होनी चाहिए? क्या पेशेंट भी उतना ही हिस्सेदार है अपनी हेल्थ केयर का कि नहीं है? तो इसमें ना मैं कई बार देखता हूँ, बहुत सारे मेरे बच्चे होते हैं, पुराने स्टूडेंट भी मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं, कहते हैं कि आ गया चैट जीपीटी का पेशेंट। ऐसा नहीं है, वो गलत है, वो थॉट प्रोसेस ना। पेशेंट तो वो तो सफरर है ना, वो तो पढ़ के आएगा। So probably it will evolve into a partnership where the patients would also be studying, with which you already said that they are already studying. Yes. खास तौर पे क्रॉनिक इलनेस, एंड जहां पे डॉक्टर बोल देता है ना ये तो रेयर इलनेस है, वहां तो पक्का पढ़ना पड़ेगा। Yes, sir, yes. तो मुझे लगता है हम भी पढ़ें, हम भी देखें ना एज अ डॉक्टर, हम भी तो देखें क्या नई ट्रीटमेंट चल रही है, इसका क्या। दूसरी एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसमें भूल जाने से गड़बड़ होती है, स्टैटिस्टिक्स। Yes. क्या ये जो बता रहे हैं, जो भी एआई टूल बता रहा है, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसको कैसे हमें इसकी नॉलेज को किस तरह से हमने इसको एब्जॉर्ब करना है, और हमें कहाँ पिंच ऑफ सॉल्ट रखना है कि ये सही नहीं है। धीरे धीरे ये सब चीजें में हमें आदत ही डालनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, सपोज मैं एमबीबीएस में मैं ही नहीं पढ़ा, अब मैं कैसे एआई टूल का जो आंसर आएगा उसको जज कैसे करोगे? भाई आपने, जैसे आप कहते हो रेडियोलॉजी में, अगर आपने रेडियोलॉजी नहीं पढ़ी, आपने एक सीटी स्कैन की रिपोर्ट बनाई और एआई ने बताया कि ये ट्यूमर है, तो आप कैसे जज करोगे जब आपने नहीं पढ़ा? तो वापस भी घूम के वहीं आ जाते हैं, शुरू में हमने बात की थी ना, कोर एक्सपर्टीज इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उसके बाद एड ऑन होता जाएगा। अच्छा, मुझे भी ये लगता है कि सर एआई इज जस्ट लाइक ए कार, फॉर एग्जांपल। आपको कार ड्राइव करना आना चाहिए आपको। हाँ, अगर नहीं आता होगा ना तो आप उसकी गलतियां नहीं पहचान पाओगे ना, फिर तो आप उसके Exactly. गुलाम होगे ना। एग्जैक्टली सर।
और अभी रिसेंटली मैंने एक एआई वर्कशॉप अटेंड किया एआई हेल्थ केयर पे, आईआईएम बैंगलोर में। हम्म। तो वहां पे जो प्रोफेसर पढ़ा रहा था वो बोला कि पेशेंट आएगा, यही वाला बात बोला सर आपने जो बोला कि पेशेंट विल कम रीडिंग एम्पावर्ड। दिस, यस सर, चैट जीपीटी, जेमिनी, दिस स्टफ। सो आपको पहले तो एक्सेप्ट करना है। आप अगर ये करोगे कि ये तो चैट जीपीटी के पर से आया तो आई डोंट एक्सेप्ट दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज वैलिड, this is valid, and you know AI also, you reply back as if you are trained in AI, and you are a reliable person, you know AI, you know medicine, you are combining both this, and you are delivering a quality of healthcare to the patient basically। यही अप्रोच है। बिल्कुल ठीक बात है, कोलैबोरेटिव अप्रोच जिसको हम यस कहेंगे, सर। कोलैबोरेटिव अप्रोच। तो और यही हम सबको मानना ही पड़ेगा। और एमबीबीएस जितने भी बच्चे हैं, अगर हम अपना एक पेडेस्टल पे बैठे रहेंगे कि मुझे ज्यादा आता है, तो इट मे नॉट, knowledge may not be the moat of future, but knowledge plus ability to creatively think, ability to critically analyze things, knowledge plus that ability Right, sir. to create this softer skills plus knowledge plus ability to take initiative। भाई आपने बहुत सारे लोगों ने अपना एआई से कुछ पूछा, लेकिन काम तो एक नहीं उसके ऊपर किया ना। Yes. इनिशिएटिव टेकिंग, जो जिसको हम लीडरशिप सॉफ्टर स्किल्स कहते थे, हम्म। वो ज्यादा काम आएंगे आने वाले टाइम में। ठीक है सर। एमबीबीएस से अब हम लोग रेजिडेंसी में चले जाते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं कि कोई टॉप एकदम रैंकर कोई स्टूडेंट है, दैट पर्सन मे बी दैट पर्सन इज लैकिंग समथिंग, वो बाद में उतना टॉप का डॉक्टर नहीं बन पाता है। वैस वर्सा कट फॉरवर्ड अगर हम होते कोई एक ओके कॉलेज से वो बहुत दूर चला जाता है, ये डिफरेंस क्यों होता है? डिस्पाइट कि दोनों में अगर 10 साल पहले अगर हम लोग जाएंगे तो दैट पर्सन वाज मच मोर कैपेबल, मच मोर हार्ड वर्किंग कंपेयर टू दिस। ये कैसे होता है सर? इसका अब शायद आंसर इसका ये है कि फेलियर टीचेस यू मोर देन द सक्सेस स्पॉइल्स यू। मतलब सक्सेस कई बार अपने को स्पॉइल कर देता है। कई बार ना, इसका मैं एक एग्जांपल है जिसको मैं मेरे ही एक पॉडकास्ट में मैंने ऐसा कहा भी था, अराइवल सिंड्रोम। कई बार ना कई लोगों के लिए होता है कि मैं एम्स पहुंच गया, या मैं हार्वर्ड पहुंच गया, या मैं स्टैनफोर्ड पहुंच गया, तो मैं अराइव हो गया हूं, जबकि जर्नी उसके बाद थी। और एक और बच्चा था जो कि किसी पेरिफेरल कॉलेज में पढ़ रहा था, जिसको था कि मैं तो कहीं अभी पहुंचा नहीं हूं, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसने ज्यादा मेहनत कर ली। ये अराइवल होने के कारण रिलैक्स हो गया कि मैं तो जीत गया हूं। वो मेहनत करता गया, जिंदगी तो लंबी थी, जिंदगी के लिए रेस तो लंबी, तो वो आगे आ गया। तो इंस्टीट्यूट जो होता है ना, जहां आप पढ़ते हो, जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे भी आप सीख रहे हैं, ये आपको ईज ऑफ लर्निंग देता है, ये आपको डीएनए देता है सीखने के लिए, लेकिन आपको बनाएगा नहीं। बनोगे तो आप खुद ना। तो वो जो इंडिविजुअलिटी का जो एक एलिमेंट है ना, वो कभी कभी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके लोग खो देते हैं। उसको लगता है मैं तो यहाँ बहुत जगह पहुंच गया, अब मैं क्यों सीखूं। तो वो जरूरी है जानना। कंप्लीसन मतलब ये वो Complacency. जो कोड लाइन जो है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन If the टैलेंट talent doesn't डजंट work. वर्क हार्ड। If the talent doesn't work. ठीक है सर। सर और हेल्थ केयर के अंदर तो टैलेंट, अब हम क्या ही कहें ना, मतलब ये जरूरी है आप बेटा जानना। हेल्थ केयर तो एक सिंसियर हार्डवर्क के लिए बना है ना। मैं रोज सिंसियरली पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को आइंस्टाइन होने की जरूरत थोड़ी है। हेल्थ केयर रिक्वायर्स सिंसियर पीपल हु आर वर्किंग विद एम्पैथी फॉर पीपल, एंड वो पढ़ाई कर रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, रोज का। मैंने बताया शुरू में दो ही बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी, एम्पैथी और लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मैंने तो ऐसा कहा नहीं ना कि उसको 180 240 आईक्यू होना चाहिए, ऐसा तो कहीं बना नहीं ना। अपन कोई फिजिक्स की इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं ना। वी आर सिंसियर पीपल हु आर वांटिंग टू हेल्प ह्यूमैनिटी बाय ट्रीटिंग पीपल हु आर डिजीज्ड एंड इन ट्रबल। वही कर रहे हैं। राइट सर। सर अब हम आते हैं कि मेडिसिन ऐसा एक ब्रांच है, मतलब एज ए होल हेल्थ केयर, कि आप सब कुछ करो फिर भी गलती हो सकता है। सही बात। और वो गिल्ट रहता है, मतलब हाउ डू यू डील विद फेलियर, गिल्ट, ये सबको आप कैसे सर आप ओवरकम कैसे करते हो? सबसे पहली बात है कि ये हमें पता होना चाहिए कि गलती हो सकती है। अच्छा। और ये जरूरी है कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर से भी गलती होती है, ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने ऊपर बहुत हार्ड हो जाओगे। बट द गलती शुड नॉट हैपन बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ सिंसियरिटी। मेरे अप्रोच ठीक थी, मेरी नीयत ठीक थी, मैंने किया सब कुछ ठीक, लेकिन फिर भी गलती हो गई। ऐसा हो सकता है। आई हैव टू टेक इट इन माई स्ट्राइड, आई हैव टू लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई माई बेस्ट कि वो अगली बार वो सेम गलती दोबारा ना हो। और इस अप्रोच के साथ जिंदगी में चलना पड़ेगा। ये होगा, लेकिन मतलब, और बुरा भी लगता है जब आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो बुरा भी लगता है। एज अ रेडियोलॉजिस्ट भी बुरा लगता है, कई बार आप रिपोर्ट मिस कर देते हो,
और बाद में लगता है यार ये तो मेरे को कभी मिस नहीं होनी चाहिए थी, मेरे से तो कभी मिस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन होती है। एंड व्हेन यू लुक एट द सेम सीटी अगेन, आप कहते हो ये तो मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता था, लेकिन उस दिन कभी कभी आपसे गलती हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हो। तो काम में ना एक यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करनी जरूरी है कि आप कितना काम अच्छी तरीके से एक दिन में कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ अवर नीड टू डू मोर वर्क एज अ डॉक्टर, या हमारी जरूरतों के कारण या हमारी आदतों के कारण, कई बार ना डॉक्टर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेच करते हैं कि एक दिन में आपने वॉल्यूम ड्रिवन हो जाता है वो। वॉल्यूम ड्रिवन हो जाते हैं। वो मैं सही वर्ड आपने पकड़ा यहाँ पे, कि अगर मैं 100 सीटी देख रहा हूँ या 150 देख रहा हूँ, 200 देख रहा हूँ, तो देयर विल बी चांसेस जो मैं आखिर में देख रहा हूँ मैं कॉग्निटिव फैटिग में गलती कर सकता हूँ। वो फैक्टर इन शायद कभी ना कभी इंडिया में अभी इसके ऊपर इतनी बात होती नहीं है कि एक मरीज पे कितना टाइम देना चाहिए, ओपीडी में एक मरीज पे कितना टाइम रिकमेंडेड है। उसको हम ग्लोरीफाई करते हैं, जो जल्दी जल्दी ओपीडी खत्म करता है या जो जल्दी जल्दी पूरी फिल्में करता है। तो जल्दी और एक्यूरेट भी तो होना चाहिए ना। तो वहां पे होगी, आने वाले समय में इस पे भी बात होगी थोड़ी। वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे ना इंडिया में जब इवॉल्व करेंगे तो हम एज अ डेवलप्ड हेल्थ केयर के अंदर डेवलप्ड नेशन बन पाएंगे। वहां पे कई सारी चीजें हैं, जैसे हमने एजुकेशन की बात की, एआई की बात कर रहे हैं हम लोग, पेशेंट के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच की हम लोग बात कर रहे हैं, और उसी के साथ ये भी हम जोड़ सकते हैं कि मतलब डॉक्टर ना मरीज को सबसे कीमती क्या चीज है जो दे रहा है, वो टाइम है। वो टाइम है, तो वो टाइम कितना, क्या वो कैसे उसको क्वांटिफाई किया जाए, कैसे उसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, बहुत सारी बातें। बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। आज जो आप बच्चे हैं और जो आज की जो हमारी जनरेशन है वो सब सही क्वेश्चंस पूछ रही है। राइट सर, एंड आई फील लाइक सर, पेशेंट का तो जो बैड रिव्यू होता है या डिससेटिस्फेक्शन होता है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल स्किल पर से, इट इज बिकॉज ऑफ द लेसर टाइम बेसिकली डॉक्टर इज गिविंग, आई फील लाइक। मैं जब एमबीबीएस कर रहा था, हमारे सर्जरी के प्रोफेसर ने बोला कि एक बार ना जब भी मैं राउंड लेता हूँ तो एक बार जो मरीज है उसके कंधे पे एक बार हाथ रख के वो बात करके जाता हूँ हमेशा। कहते ये नेवर फॉरगेट टू हैव द ह्यूमन टच। कह रहे तुम दूर दूर से चलते जाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो दोज आर द थिंग्स दैट, वो मैंने फिर बोला ना, जो अब जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड जब बन जाता है ना, तो सॉफ्ट चीजों की कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जब अगर नॉलेज सबके पास है, मरीज के पास भी है, डॉक्टर के पास भी है, सबके पास एआई आ गया, सबके पास चैट जीपीटी आ गया, तो जो सॉफ्टवेयर चीज है ना, जो ह्यूमन कनेक्ट, जजमेंट, कि इतने सारे एआई एल्गोरिथम कह रहे हैं फिर भी मुझे करना क्या है, उसकी जजमेंट लेगा कौन? वो तो इंसान ही लेगा ना। ह्यूमन टच, एम्पैथी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, ये सब चीजों की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जो लोग मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचेंगे उनकी कीमत भी बढ़ेगी। राइट सर। सर, आपका प्रीवियस वीडियोस मैंने देखा, आपका स्पीचेस बहुत सुना मैंने। आपने एक पर्टिकुलर एक टॉपिक को आप ज्यादा एम्फेसिस देते हो, आपने बोला कि कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। ये इसको आप थोड़ा इलाबोरेट कीजिए। कम्युनिकेशन मतलब क्या है? आपकी सोच है, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा तो भी उसकी क्या वैल्यू है। तो कम्युनिकेशन, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि आप एज अ डॉक्टर जब आप मरीज से बात करो या एज अ पर्सन आप अपने जानने वालों से, अपने प्रिय लोगों से बात करो, यू हैव टू डेवलप द एबिलिटी टू क्लियरली टॉक। यहाँ मैं क्यों कह रहा था, क्योंकि ना एज अ डॉक्टर ना हम लोग, जैसे मैं अपने आप को अगर स्कूल में सोचता हूँ या आज भी मैं सोचता हूँ, मैं पर्सनल जगह पे काफी इंट्रोवर्ट मानता हूँ अपने आप को, लेकिन प्रोफेशनल जगह पे जाके तो आई फाइंड माई सेल्फ वेरी एक्सप्रेसिव। तो हमें भी सबको सीखना पड़ेगा। आप पर्सनल चीजों में इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली तो आपको बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो इंट्रोवर्टेड पर्सन को ऐसे करना चाहिए कि काइंड ऑफ वी आर एक्टिंग अपॉन ए रोल बेसिकली व्हेनेवर यू आर ऑन द स्टेज आपको ऑफ। एक स्प्लिट डुअल पर्सनैलिटी सी बनानी पड़ेगी कि राइट सर। ये तो मैं घर पे तो मैं ऐसा हूँ, लेकिन मरीज के सामने इंट्रोवर्ट कैसे बनेगी बात? या राइट आप सर। स्टेज पे चले गए, आप बोल रहे हो मैं बात नहीं करूंगा, उसका क्या मजा है? राइट तो सर। यू हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी। तो वो जो अपनी बात रख पाना, हर जगह पे, हर टेबल पे अपनी बात को जहां आप पहुंचे हो अपनी बात रख पाओ, क्लियरली इंपैक्टफुली रख पाओ, वो जरूरी है। वो लीडरशिप स्किल्स का एक भाग है जो मुझे लगता है जरूरी है। मतलब नई चीजों को इनकल्ट्रेट करना, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी बात रख पाना, लेकिन जिद नहीं करना। अपनी बात आपने रखी, सामने वाला भी अपनी बात रखता है, समझने की कोशिश करना एंड फाइंड द मिडवे आउट। ठीक है सर। सर, आपको याद है मतलब पहले बार जब बिग क्राउड के सामने एकदम स्टेज पे आप थे, एंड व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? कि कैसे बहुत सारा होता है ना कि स्टेज में फ्रोजन हो जाता है, फ्रीज हो जाता है जो। हाँ, ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, हाँ। लेकिन स्कूल में मैं सोचता हूँ कि स्कूल में पहली बार जब मैं आई थिंक क्लास 6th में होऊंगा, जो पहली बार स्टेज पे गया हूँगा, तो मैं स्पीच भूल गया जो मैंने देनी थी।
तो उसके बाद मुझे बहुत बुरा भी लगा कि कैसे भूल गया। और उसके बाद ना मैंने ये सोचा कि मैं रटी हुई बातें नहीं बोलूंगा, मैं बोला जो दिल में आएगा वो बात करेंगे। तो वैसे ही तो अब मैं जब जैसे अगर मैं क्लासरूम में भी जाता हूँ तो आई ट्राई टू बी स्पॉन्टेनियस। मैं अगर कई बार मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जाता हूँ, मैंने टेडेक्स स्पीचेस भी 2-4 एक दी है, तो आई ट्राई टू बी मोर स्पॉन्टेनियस कि फ्रेमवर्क याद करके जाओ ना, तो लगता है मेमोरी में भूल ना जाओ। जो दिल में आ रहा है सामने से कनेक्ट करो और बात करो इज द बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जानना चाहूंगा कि यू आर ए डैम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो आपसे ये माइंडसेट मुझे सीखना है कि कॉम्पिटिटर को आप किस नजर में देखते हो, आप क्या उसको देखते ही नहीं हो या देखते हो, मतलब किस अप्रोच से आप कॉम्पिटिटर को लेते हो, या कोई कॉम्पिटिटर कोई अगर अच्छा करता है, कोई नया कोई इनोवेशन लाया, तो उसको आप किस माइंडसेट से देखते हो? दिस आई एम थिंकिंग एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर सर। ज्यादातर ना मैं अपने आप को ही अपना कंपटीटर मानता हूँ, और मेरा हमेशा ये मानना होता है कि एम आई इम्प्रूविंग फ्रॉम वेयर आई वॉज बिफोर। बहुत ज्यादा ना, ऑल्दो ये लोग कहते हैं कि कंपटीशन की पूरी चीज एनालाइज करो देखो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्री ऑक्युपाइड विद अदर्स हो जाओगे ना, तो जिंदगी तो एक ही है, अपनी चीज पूरी तरह रख नहीं पाओगे। तो अपना जो आप कहना चाहते हो, आपका जो मिशन है जिंदगी से, आप क्या कहानी लिख के जाना चाहते हो, तो मैं ब्रॉडली कोशिश ये करता हूं कि एम आई इम्प्रूविंग, मैं कल कहाँ था आज उससे बेहतर हूं कि नहीं हूं, उसको ज्यादा फोकस करता हूं एज कम्पेयर टू व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड व्हाट अदर्स आर गेटिंग। ये दोनों जरूरी है, लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या मिल रहा है। अगर यही देखते रहेंगे तो फिर ना मेंटल हेल्थ टॉस पे चली जाएगी, हम खेल नहीं पाएंगे। करेक्ट सर, करेक्ट सर। एंड बहुत सारे लोगों का ये थॉट्स होता है कि मार्केट में कोई बिजनेसमैन, मतलब एक रेस्टोरेंट, अगर एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ रेस्टोरेंट, एक अच्छा रेस्टोरेंट अगर है कोई चाइनीज रेस्टोरेंट का, मे बी उसका पास में और एक अगर चाइनीज रेस्टोरेंट अच्छा खुलेगा, तो दैट विल नॉट वर्क। इसका क्या लॉजिक क्या है? ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। अगर हम देखते हैं जो कार मैकेनिक होते हैं, जैसे आप देखना, जहाँ स्पेयर पार्ट मिल रहे होते हैं गाड़ी के, सारे एक ही जगह पे एक के बाद एक मिल रहे होते हैं। तो मार्केट प्लेस इसी को तो कहते हैं ना। या अमेजोन पे अगर आप जाते हो, या इवन आप जोमेटो पे जाते हो, तो वहां पे तो चाइनीज इतने सारे मिल रहे हैं। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द प्लेस वेयर पीपल आर कमिंग फॉर फूड। तो आप अगर एक जगह है, एक रोड है जहाँ पे, जैसे हर शहर में होता है कि ये एक एरिया है जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, ईटरीज हैं, तो वहां एक चाइनीज भी चल सकता है, 2 भी चल सकते हैं, 3 भी चल सकते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि क्या आप उसमें पैशनेटली इन्वॉल्व हो, या आप एक फैक्ट्री की तरह सामान बनाना चाहते हो, आप दिल से इन्वॉल्व हो। ब्रेक थ्रू तो तभी मिलेगी जब आप पैशन टेबल पे लाओगे, चाहे खाने में भी। जैसे वो आप, आई एम श्योर ये तो आप भी एग्री करोगे, मम्मी जो खाना बनाती है वही बेस्ट होता है, दिल से बनाया ना। करेक्ट सर। मतलब कोई अगर अच्छा है, उसके बाद भी कोई अगर दूसरा कोई अच्छा कर रहा है, देन बोथ हैज मार्केट स्पेस बेसिकली। अबंडेंस, इसका नाम है अबंडेंस, माइंडसेट ऑफ अबंडेंस। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं तभी जीतूंगा जब दूसरा हारेगा, वो बाइनरी माइंडसेट है। अबंडेंस माइंडसेट है कि मैं भी जीतूं, आप भी जीतोगे, हो सकता है और भी बहुत सारे लोग जीते। नेचर ने अबंडेंस बनाई है, सो दैट इज द माइंडसेट दैट यू हैव टू कल्टीवेट एज एन एंटरप्रेन्योर। आई थिंक हेल्थ केयर में ये माइंडसेट चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये होता है सर, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर कोई खोला, कोई हॉस्पिटल खोला, वो साइड वाला को अपना कॉम्पिटिटर मानता है। जबकि इतने मरीज हैं, इतने लोग हैं, इतना ही पॉपुलेशन है, उसको सोचना नहीं चाहिए ऐसा। यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू सर, मुझे बहुत कुछ सीख मिली सर। थैंक यू बच्चे, मुझे भी बहुत मजा आया, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इनिशिएटिव। एंड मैं सभी लिसनर्स को एक बार फिर कहना चाहूंगा, अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी सर्कमस्टांसेस को अपने आप को डिफाइन मत करने दो, आप वो करने की कोशिश करो जो आप करना चाहते हो। अपने आप से ट्रूथफुल हो जाओ, सब कुछ हो पाएगा। अपना टाइम आएगा नहीं, लेकिन अपन खुद लाएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, ये सर, ये बात मुझे याद आएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय। Thank you so much, Dr. Sumer, for discussing all these things so openly. Before closing the podcast, I want to tell you my 3 biggest takeaways from this podcast. One is, don't always live in the destination mindset. Example, NEET UG में रैंक आ गया, you get into medical school, job done. Destination mindset, wrong. कोई MBBS student, he's thinking of getting a good rank in PG, NEET PG, रैंक मिल गया, job done. Destination mindset, again wrong. You come into practice, हो गया, पैसा कमाई शुरू हो गया, destination mindset wrong. तो हर जगह में ये जो destination mindset है, ये हमको रोकना पड़ेगा।
We have to enjoy the journey. It's not a destination you are chasing. There's a famous song, I think, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी. So the destination is not that beautiful. The journey is beautiful. You have to enjoy the journey. उसमें कुछ shortcomings आएगा, उसमें कुछ अच्छाई होगा, लेकिन at the end of the day वो जो journey है ना, वो आपको destination तक पहुंचाएगा. Second thing is don't speculate too much before you start. आपको पहले start करना पड़ेगा. Once you start, then you get to realize the good things, the shortcomings of the particular thing. इसका मतलब ये हुआ कि फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जो है, फिजियोलॉजिकल स्पेक्यूलेशन जो है, दैट इज़ फाइन. बट वो जो पैथोलॉजिकल माइंडसेट जो हो जाता है कि आई एम थिंकिंग लाइक आई विल डू दिस बट आई नेवर डू दिस बिकॉज आई एम टू मच इनटू द नेगेटिव थिंग्स ऑफ दैट थिंग, है ना. तो ये नहीं करना है. फिजियोलॉजिकल चीज़ ठीक है, पैथोलॉजिकल चीज़, पैथोलॉजिकल माइंडसेट, पैथोलॉजिकल स्पेक्यूलेशन, पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन इज नॉट गुड एट ऑल. So it is not one day I will do this. This is the day one. And third is आप वो काम करो जिसमें आपको काम को काम ही नहीं लगता है. It can be a particular profession. Inside that profession it can be a particular subject, can be a particular role. It can be anything basically जिसमें आपको अच्छा लगता है. Because if you enjoy that thing ना, उसका जो खराब साइड भी है ना, वो आपको अच्छा लगेगा. Because हर जर्नी में आपको शॉर्टकमिंग्स को फेस करना पड़ेगा, डिफ़िकल्टीज़ आएगा, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं लगेगा बिकॉज यू लव दैट थिंग. एट द एंड ऑफ द डे जो लंबा टाइम तक टिका रहता है, दैट पर्सन विंस. दिस वेर माई बिगेस्ट टेक अवेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सुमेर सर. थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड sharing your thoughts. To everyone who is watching this, if you feel this valuable, if it is helping you growing to build up the mindset, you can share this thing with your friends and family. And I am Dr. Raman Saul, thanking you once again for watching. We'll meet you in the next video. Till then, take care.